Well, marking the final day of the three-day RSS event celebrating 100 years of the Sangh, RSS Chief Mohan Bhagwat addressed the media answering some tough questions. Now, clarifying his earlier remark on retirement at the age of 75, Mohan Bhagwat clarified that he never said that he would step down. He added that he is ready to retire anytime, but is equally ready to continue working even beyond the age of 75. His earlier comment was seen by the Congress and the opposition as a veiled message to Prime Minister Narendra Modi, who turns 75 this year. Let's listen in to what Mohan Bhagwat has to say about the question thrown towards him. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old, and Sangha will tell me, go, run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish anything. So whatever they say, I am Sarsanga Chalak. But do you think I am the only one who can be Sarsanga Chalaks? There are at least 10 people here. They are sitting in this hall. Any time they can take this mantle and carry on. But they are very busy and their contribution is valuable. They cannot be spared. I was the one who can be spared. So, this is not for retirement of anybody or myself. We are ready to retire any time in the life and we are ready to work as long as Sangha wants us to work. Mohan Bhagwat also batted for a 3-child policy, saying every family should consider having 3 children to help control population and also maintain balance. Listen in. अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है. अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं. गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3. तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए. ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं. दूसरा, एक कंसर्न भी है, जनसंख्या एक एसेट है, बोझ भी हो सकता है. कल खिलाना पड़ेगा ना सबको, तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है. तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे. तो 3 होने चाहिए, 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उनकी परवरिश वगैरह ठीक होने की दृष्टि से. ये सब लोगों ने स्वीकार करने वाली बात है. Mohan Bhagwat also backed caste-based reservation by saying that RSS is trying to secure reservation for the weaker section and is not doing anything for BJP's vote bank. ग्रंथ तो बहुत है, मनुस्मृति सहित, उसके अनुसार हिंदू ने व्यवहार किया है, ऐसा कम है. हमारे यहाँ 2 प्रमाण है, एक शास्त्र है, दूसरा लोक है. और शास्त्रात रूढ़िर बली ऐसा है, यानी लोक जो चाहता है वो होता है. पुस्तक में जो है, ग्रंथों में जो है, हम वैसे नहीं चलते और इसलिए हमारे यहाँ एक ग्रंथ नहीं है. और ग्रंथों के अर्थ अलग अलग किए लोगों ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार. तो पूरे इतिहास में मनुस्मृति के अनुसार देश चला, पूरा देश कभी नहीं चला. मेजॉरिटी देश अपने अपने सुविधा के अनुसार चला. ये जो मैंने कहा श्रम प्रतिष्ठा, उसके क्षरण के कारण ऊंच नीच की भावना, पहले स्वच्छता की भावना, अस्वच्छता की भावना, अस्वच्छता को अपवित्रता बना दिया, अपवित्रता के कारण ऊंच नीच हो गया. ये ऐसा विकसित हुआ है, कब से हुआ पता नहीं. तो मूल वहाँ इलाज करना, सब लोग समाज के अंग है, समाज के सब अंग अपना अपना काम करते हैं, ऊंच नीच कोई नहीं है.
सबकी प्रतिष्ठा समान है, सब अपने हैं। ये भाव जगाना वो करना पड़ेगा, संघ वो कर रहा है। ग्रंथों का इसमें बहुत संबंध नहीं है, ग्रंथ हमेशा स्मृतियां तो बदलती है समय के अनुसार, वो नई स्मृति की आवश्यकता है। हमारे धर्माचार्य लोग सब विचार करें। In fact, in a stern remark, Bhagwat said that India is a Hindu nation and the sooner one agrees with it, it's better. हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वो है। ऋषि मुनियों ने उसको राष्ट्र घोषित कर दिया है। हिंदू शब्द आजकल करते, वो किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं है, वो एक सत्य है। मानने से आपका लाभ है, न मानने से आपका नुकसान है। आजमा के देख सकते हैं। On communal harmony, Bhagwat said that Hindus and Muslims don't have to be united because they are already one. हिंदू मुस्लिम एकता वगैरह मेरे मन में आता है कि जो अलग है उनको एक करने के लिए एकता की बात, जो एक ही है उनकी क्या एकता करना है? क्या बदला है? क्यों पूजा बदली है और क्या बदला है? लेकिन जो डर भर दिया गया कि भाई ये लोग रहेंगे तो क्या होगा बता नहीं सकते। हाँ, इतनी लड़ाई हुई, इतने अत्याचार हुए, इतने कत्लेआम हुए, देश भी टूटा, सावधान रहो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ अरे भाई ये हिंदुओं के साथ जाएंगे तो तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा, तुम अलग हो, अलग रहो, अलग मांगो, नहीं तो तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। गलत बात है। सुशिक्षा यानी केवल लिटरेसी नहीं, एजुकेशन यानी केवल स्कूलिंग, इंफॉर्मेशन क्रैमिंग नहीं, तो मनुष्य सुसंस्कृत बने, मनुष्य वास्तविक मनुष्य बने, इसको शिक्षा कहते हैं। वो शिक्षा मिलती है तो मनुष्य विष का भी उपयोग दवाई के रूप में कैसा करना ये खोज लेता है। ये सब परिवर्तन होना आवश्यक था। थोड़ा बहुत होते होते पिछले सालों में और इसका अवेयरनेस ज्यादा बढ़ा है और इसलिए नई शिक्षा नीति में ये सारी बातें लाए, ऐसा प्रयास चल रहा है। कुछ बातें हो गई ऐसा मैं सुन रहा हूं, कुछ बातें होने वाली है, लेकिन शिक्षा में ये प्रणाली इस प्रकार बदलना, प्रशासन में भी इस प्रकार की प्रणाली बदलना ये आवश्यक है।